Good morning, dear students. Let's start another topic of chapter 1. Open your book, page number 15. Today's topic is psychology and other disciplines. Open your book, page number 15, psychology and other disciplines. So, any discipline which deals with people would definitely recognize the relevance of the knowledge of psychology. Similarly, psychologists also acknowledge the relevance of other disciplines in understanding human behavior. This trend has led to the emergence of interdisciplinary approach in the field of psychology. Researchers and scholars in science, social science and humanities have felt the significance of psychology as a discipline. So for this, look at the figure 1.1. It clearly shows the relationship of psychology with other disciplines in studying brain and behavior. Psychology shares its knowledge with neurology, physiology, biology, medicine, and computer science in studying human behavior, its meaning, growth, and development. In a socio-cultural context, psychology shares its knowledge with anthropology, sociology, social work, political science, and economics. In studying mental activities involves in creation of literary text, music, and drama. Psychology shares its knowledge with literature, art, and music. Some of the major disciplines linked to the field of psychology are discussed below. So, आप फिगर 1.1 भी देख सकते हैं. इसमें भी सभी फील्ड्स दी गई हैं जहाँ पे साइकोलॉजी का यूज़ होता है. रिसर्चर्स हैं, जो साइंटिस्ट हैं, वो स्टडी करते हैं कि कहाँ पे साइकोलॉजी का क्या क्या रोल है. तो आप फिगर 1.1 देख सकते हैं. साइकोलॉजी का रोल प्ले पॉलिटिकल में, एजुकेशन में, इकोनॉमिक्स में, फाइन म्यूजिक आर्ट, law, criminology, mass communication, sociology, architecture and engineering, medicine and psychiatry, computer science, and philosophy. So, let's discuss in detail. First is philosophy. फिलॉसफी में क्या है? सबसे पहले साइकोलॉजी एंड फिलॉसफी एक ही साथ इकट्ठे ही पढ़े जाते थे. तो 19th सेंचुरी में तो क्या हुआ, साइकोलॉजी को फिलॉसफी से अलग कर दिया गया. सो until the end of the 19th century, certain concerns that are now part of contemporary psychology, like what is the nature of the mind and how do humans come to know their motivations and emotions, were the concerns of philosophers. In the later part of 19th century, Wundt and other psychologists adopted an experimental approach to these questions, and contemporary psychology emerged despite the emergence of psychology as a science. It generally draws philosophy, particularly with respect the methods of knowing and various domains of human nature. नेक्स्ट इज़ मेडिसन. मेडिसन हो गया. हम बात करते हैं कि डॉक्टर्स की लाइन में भी साइकोलॉजी का यूज़ किया जाता है. तो जैसे कि अब हम बात करते हैं, अगर हम यहाँ पे एग्जांपल लें कोविड का, हम कहते हैं कि यहाँ कोविड के लिए भी ह्यूमन बीइंग की मेंटल हेल्थ जो है वो स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है ना. कहते हैं मेडिसिन तो इंसान को ठीक ज़रूर करती है, बट उसके अंदर जो खुद में विल पावर है, जो एक पॉजिटिविटी है, उससे वो सबसे ज़्यादा जल्दी इम्प्रूव करता है अपनी स्ट्रॉन्ग मेंटल हेल्थ से. सो डॉक्टर्स हैव रियलाइज दैट द मैक्सिमम हेल्दी बॉडी रिक्वायर्स अ हेल्दी माइंड is actually true. A large number of hospitals now employ psychologists. The role of psychologists in preventing people from engaging in health hazardous behaviors and in adhering to the prescribed doctor's regimen are some of the important areas where the two disciplines have come together while treating patients suffering from cancer, AIDS, and the physically challenged, and handling patients in the intensive care unit.
So, and patients during post operative care, doctors have also felt the need of psychological counseling. A successful doctor look at the psychological as well as physical well-being of the patient. Next is in the field of economics, pole science, and sociology. So, as sister social science disciplines, these three have drawn considerably from psychology and have enriched it as well. Psychology has contributed a great deal with the study in micro level economic behavior, particularly in understanding consumer behavior, saving behavior, and in decision making. American economists have used data on consumer sentiments to predict economic growth. इकोनॉमिकल ग्रोथ में सबसे पहले क्या देखा जाता है कि उनके सेंटिमेंटल जो उनके ग्रोथ के होते हैं उनको प्रिडिक्ट किया जाता है कि किस तरीके से हम आगे की तरफ बढ़ सकते हैं. ऐसे कौन कौन से एस्पेक्ट्स हैं जिनको हम ले सकते हैं कि जिससे हमारी ग्रोथ हो सके, हम आगे की तरफ बढ़ सकें. अमेरिका में सबसे ज़्यादा जो इकोनॉमिस्ट हैं वो यूज़ करते हैं साइकोलॉजी की, साइकोलॉजिकल हेल्प यूज़ करते हैं. Three scholars who have worked on such problems have received the Nobel Prize in Economics, namely H. Simon and D. Kahneman and the T. Sechelin. Like economics, political science to draw considerably from psychology, particularly in understanding issues related to exercise of power and authority, nature of political conflicts and their resolutions, and voting behavior. Sociology and psychology come together to explain and understand the behavior of individuals within different socio-cultural context issues related to socialization, group and collective behavior, and intergroup conflicts gained from both those disciplines. Next is computer science. From the very beginning, the effort of computer science has been in mimicking the human mind. One can see it in terms of how a computer is structured, its memory organized, sequential, and simultaneous. Read parallel processing of information. Computer scientists and engineers are seeking to make computers not only more and more intelligent but also machines which can sense and feel. Developments in both these disciplines have brought about significant advancement in the field of cognitive sciences. Next is law and criminology. A skilled lawyer and a criminologist require knowledge of psychology in answering such questions as how well a witness remembers an accident, a street fight, or a murder. How well can he report such fact when taking the witness stand in the court? What factors influence the decision which is taken by the jury? What are the dependable signs of guilt and falsehood? कहते कि जैसे अब हम लॉ एंड क्रिमिनोलॉजी में देखें कि आगे वाले को ऑब्जर्व करना, चाहे वो क्रिमिनल है, मर्डरर है, क्या वो सच बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, जो उसको ऑब्जर्व करके उसके बिहेवियर को ऑब्जर्व करना. तो कि क्या जो उसको अगर गिल्ट है तो क्या वो रियलिटी में उसको गिल्ट को फील कर रहा है. तो ये लॉ और क्रिमिनोलॉजी में इसका रोल प्ले है. नेक्स्ट इज mass communication. The print and the electronic media have entered in our lives in a very big way. They have a major influence on our thinking, attributes, and our emotions. If they have brought us closer together, they have also reduced cultural diversities. The impact of media on the formation of attitudes of children and their behavior is a domain where both these disciplines come together. Psychology also help in developing strategies for better and effective communication. A journalist in reporting news must know the reader's interest in the story, since most stories deal with human events. Knowledge of their motives and emotions is very important. A story will have more impact if it is based on a background of psychological knowledge and insight. कहते कि जो आजकल मास कम्युनिकेशन है, मीडिया है, इसका इम्पेक्ट बहुत ज़्यादा ह्यूमन बिहेवियर पे होता है.
है ना। जो वो हमें बताते हैं हम वही सुनते हैं और हम वही अडॉप्ट कर लेते हैं। तो वो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं कि कौन सी ऐसी न्यूज़ हो या कौन सी ऐसी चीज़ें जो वो बता रहे हैं किसका इम्पेक्ट सबसे ज़्यादा ह्यूमन बीइंग पे होता है, तो वो उन्हीं स्टोरीज़ पे या उन्हीं न्यूज़ पे ज़्यादा फोकस्ड रहते हैं। तो उनका मेन बेसिक मोटिव यही होता है कि किस तरीके से वो ले मैन के, आम आदमी के इमोशंस को अंडरस्टैंड करके और किस तरीके से बैकग्राउंड ऐसा इतना स्ट्रॉन्ग बनाए कि उन्हें कुछ भी अगर आप सुन रहे हैं न्यूज़ या कुछ भी है तो आपको यहाँ पता हो कि वो फेक है या रियल है। ये इंसाइट होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट इज़ म्यूज़िक एंड फाइन आर्ट। Music and psychology have conversed in many areas. Scientists have made use of music in raising work performance. Music and emotions is another area in which a number of students have been carried out. Musicians in India have recently started experimenting with what they call music therapy. In this, they use different rags for curing certain physical alignments, and efficiency of music therapy still remain to be proven. कहते कि अब म्यूज़िक में क्या रोल प्ले है। म्यूज़िक के अगर एरिया में हम बात करें तो आजकल जो साइंटिस्ट इस पे वर्क कर रहे हैं कि किस तरीके से म्यूज़िक से इमोशंस को लिंक्ड किया जाता है। तो कई बार कोई स्ट्रेस में है, एंजाइटी में है, तो हम कहते हैं ना कि आप अच्छा पॉजिटिव म्यूज़िक सुनिए, म्यूज़िक थेरेपी लीजिए। तो म्यूज़िक के भी एरिया में इसका रोल प्ले बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट इज़ आर्किटेक्चर एंड इंजीनियरिंग। एट फर्स्ट ग्लेंस द रिलेशनशिप बिटवीन साइकोलॉजी एंड आर्किटेक्चर एंड इंजीनियरिंग वुड अपीयर importable, but such is actually not the case. Ask any architect must satisfy his client by proving mental and physical space through her design and satisfy aesthetically. Engineers must also take into account human habits in their plans for safety. For example, on street and highway, psychological knowledge help in a big way in designing in all mechanical devices and displays. So, to sum up, psychology is located at the intersection of many fields of knowledge pertaining of human functioning. सो अभी हम बात कर रहे हैं कि साइकोलॉजिस्ट जो हैं वो कहाँ कहाँ पे वर्क करते हैं। साइकोलॉजिस्ट एट वर्क, तो हम जैसे पहले भी बात किया हमने कि जो काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट हैं या जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं उनके क्या रोल प्ले होते हैं। तो यहाँ पे क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट, कम्युनिटी साइकोलॉजिस्ट एंड सोशल स्कूल साइकोलॉजिस्ट, ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट, मैनी आर देयर। सो अब जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं उनकी काफ़ी ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है। जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं वो स्पेशलाइज्ड होते हैं साइकोलॉजी की फील्ड में। तो उनका काम होता है कि एक साइकेट्रिस्ट के साथ वर्क करना, या फिर वो अपने पर्सनल क्लिनिक्स भी कर सकते हैं जिसमें वो मेंटल डिसऑर्डर के साथ डील करते हैं, इंडिविजुअल के, जिसमें किसी की एंजाइटी, डिप्रेशन, एनी काइंड ऑफ फियर, फोबियाज, इसको दूर करते हैं। सोशल एजेंसीज के साथ काम करते हैं, एज वेल एज रिहेबिलिटेशन सेंटर्स में काम करते हैं। नेक्स्ट इज़ काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट। जो काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट हैं वो डील करते हैं मोटिवेशनल और इमोशनल प्रॉब्लम्स के साथ। कोई भी क्लाइंट है, कोई भी इंडिविजुअल है, उसकी मोटिवेशनल और इमोशनल प्रॉब्लम्स के साथ डील करते हैं काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट। और ये कहाँ कहाँ पे जॉब कर सकते हैं? मेंटल हेल्थ केयर सेंटर्स में, हॉस्पिटल्स में, स्कूल्स में, कॉलेजेस में एंड यूनिवर्सिटीज़ में। आगे बात कर रहे हैं हम कम्युनिटी साइकोलॉजिस्ट की। जो कम्युनिटी साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो कहाँ काम करते हैं? कॉमन एजेंसीज़ में काम करते हैं, लाइक गवर्नमेंट एजेंसीज़ हैं, प्राइवेट एजेंसीज़ हैं, मेंटल हेल्थ एजेंसीज़ हैं, एनजीओज़ हैं, रिहैबिलिटेशन सेंटर्स हैं, जो हमने लाइव क्लास में भी डिस्कस किया था। कम्युनिटी साइकोलॉजिस्ट। इसके बाद स्कूल साइकोलॉजिस्ट। स्कूल साइकोलॉजिस्ट क्या करते हैं? स्कूल लेवल पे बच्चों को मोटिवेट करते हैं, उन्हें फोकस्ड बनाते हैं, उनके कंसंट्रेशन को इम्प्रूव करते हैं, एज वेल एज वो ये ध्यान देते हैं कि अगर किसी बच्चे का
एकेडमिक्स में उसका जो है परसेंटेज लो जा रहा है, किस रीज़न से जा रहा है, व्हाट आर द रीजंस, उस रीजंस को फाइंड आउट करते हैं, स्पेशल चिल्ड्रंस के साथ डील करते हैं। ठीक है, आगे है ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट। जो ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट हैं वो ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, जिसे हम इंडस्ट्रियल साइकोलॉजिस्ट भी बोल देते हैं, जिसमें कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के लिए काम करते हैं, एम्प्लॉयज़ के साथ जो उनके बॉस हैं उनके रिलेशंस अच्छे हों, कम्युनिकेशन गैप्स ना हो, उनके इंटरपर्सनल रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग हों। ये होते हैं ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट, जिन्हें हम इंडस्ट्रियल साइकोलॉजिस्ट भी कह देते हैं। आगे हम बात कर रहे हैं साइकोलॉजी इन एवरीडे लाइफ। साइकोलॉजी इन एवरीडे लाइफ में क्या होता है कि जो अगर हम यहाँ बात करते हैं, कहते हैं कि रूटीन में साइकोलॉजी का यूज़ है हर चीज़ में, हर तरीके की जो हम प्रॉब्लम्स देखते हैं रूटीन में, जो हम फेस करते हैं, हर जगह साइकोलॉजी का रोल प्ले। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिया कि अ डॉटर हैविंग टू फेस एन अल्कोहलिक फादर और अ मदर डीलिंग विद द प्रॉब्लम चाइल्ड। ठीक है, अगर कोई फादर है या वो अल्कोहलिक हैं, अल्कोहल लेते हैं, तो उस बच्चे के साथ उसकी अपब्रिंगिंग कैसी हो रही है आप सोच सकते हैं, है ना। अगर उनके घर में रोज़ की प्रॉब्लम्स हैं, कोई ना कोई दिक्कत है, तो बच्चे की अपब्रिंगिंग है वो अच्छी नहीं होती है। सो समटाइम क्या होता है कि लैक ऑफ कम्युनिकेशन एंड इंटरेक्शन अमंग फैमिली मेम्बर्स। कई बार फैमिली में इंटरेक्शंस अच्छे नहीं होते पेरेंट्स के बच्चों के साथ या बच्चों के पेरेंट्स के साथ, तब भी बच्चों की अपब्रिंगिंग क्या है अच्छी नहीं हो पाती। या फिर टेररिस्ट ग्रुप्स हो गए और सोशली आइसोलेटेड कम्युनिटीज़ हो गई, है ना। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं कि एवरीडे रूटीन में भी हर तरीके की बात में, हर तरीके के बिहेवियर में साइकोलॉजी का रोल प्ले है। तो इसके लिए भी आप ये जो स्टेंजा है ये रीड कर लेंगे, बहुत इजी है। अगर क्लियर नहीं होगा तो लाइव क्लास में भी हम इसे डिस्कस करेंगे। ओके, सो विद दिस बेटा चैप्टर 1 हमारा कंप्लीट हो चुका है। ये एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपने अपने नोट्स में लिखने हैं। क्वेश्चन 1 2 3 पेज नंबर 20 पे हैं। इसके बाद हैं क्वेश्चन नंबर 4 5 6 7 8 जो कि पेज नंबर 21 पे है। विद दिस चैप्टर 1 हमारा कंप्लीट है। जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं वो मैं लाइव क्लास में आपको बताऊंगी, एज वेल एज डॉक्यूमेंट्स में भी मैं आपको सेंड करूंगी। ओके, अगर आपके कोई भी डाउट्स हों तो आप मुझसे लाइव क्लास में भी ले सकते हैं और ऐप पे भी ले सकते हैं। विद दिस थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।